Assalamu alaikum, dear students. My name is Adil Ashraf from FutureX Learning. As you know that we have launched one short series for upcoming board examinations. I am going to teach you English in one short videos. As you know that it will take us a long time to cover a particular chapter or a particular topic of grammar, but we are going to come up with short videos of 30 or 40 minutes in which we will cover a topic and we will discuss those questions which will certainly, and we assure you, will definitely come in your examinations and will help you in your examination. So we are going to start one short videos of English from today, and I'm going to start with the very first poem, and that is prayer. I'm going to start with prayer. Prayer. As you know, it has been written by Ghulam Ahmad Mahjoor, Pirzada Ghulam Ahmad. Mahjoor was his pen name, pseudonym, which we in Kashmiri say Parthun. Parthun means an abandoned one, जिसको लोगों ने तरक किया होता है, छोड़ दिया होता है. एंड इट वाज हिज पेन नेम. इस पेन नेम के अंडर वो लिखते थे एंड इसी पेन नेम के अंडर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए एंड रिसीव्ड recognition in Kashmir Valley and is also known as Shair Kashmir, the poet of Kashmir. So let us start because we do not have enough time to discuss many things in this video, I know, but certainly I'm going to discuss the things with you which are definitely going to help you in your examinations. तो क्या क्या हम बच्चा डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में? हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देंगे इस पोएम की. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बट सर्टेनली जितना हम पढ़ाएंगे आपको उतना आपको एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प करेगा. पैराफ्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एंड आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दोज वेरी पर्टिकुलर थिंग्स एज वेल. समरी ऑफ द पोएम वो तो आती नहीं है, तो वो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में ही जाएगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही डिस्कस कर लेंगे. लेकिन इसके बगैर जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है इसके पोएटिक डिवाइसेस. और इसके बगैर एक और चीज आती है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करूंगा. और वो किस हिसाब से वो किस तरीके से आता है, व्हाट्स द नेचर ऑफ द वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो हम आपके साथ इंशाअल्लाह रहमान इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो let us begin. First of all, the poem starts with these lines. इन लाइन से पोएम स्टार्ट होती है. Lord, Lord. Now, this is the famous Kashmiri nazm, famous Kashmiri prayer है ये. साहिबो सच्चम में चेनी वक्त में असलिच हावतम. It was written in Kashmiri by Mahjoor Saab, but it has been translated into English by Professor G.R. Malik, गुलाम रसूल मलिक साहब, जो बहुत ही फेमस लेक्चरर रहे हैं कश्मीर में और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उनका व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर. उस लिटरेचर को इंग्लिश में लाने में मलिक साहब, प्रोफेसर मलिक साहब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. एंड दिस पोएम हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी टू इंग्लिश बाय प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक साहब. So he starts with, Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and pleas. Cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity and doubt. So I charge my heart with passion, zest and hope. So here, first of all, the speaker of the poem, the poet, he implores to his God, to his Lord, to his Almighty, to Allah. He implores to him. He tells him, he calls him his hope and trust. वो अल्लाह को अपना होप एंड ट्रस्ट, अपनी उम्मीद, अपना भरोसा बताते हैं, उस नाम से एड्रेस कर रहे हैं. बेटा देखिए,
आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं यहां पर आपको ये समझना है, बिकॉज हम डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जा सकते हैं, हम उतना नहीं पढ़ सकते अभी, बिकॉज हमारे पास बहुत कन्फाइंड टाइम है, वी आर लेफ्ट 1 मंथ ओनली, तो हमें 1 शॉट में ये कंप्लीट करना है। तो हमें ये चीजें समझनी है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बाय द एंड ऑफ द पोएम बताऊंगा, वो किस उसका नेचर क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपके साथ एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज सेक्शन डी, जो आपका लास्ट का सेक्शन होगा आपके पेपर में। उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पोएम का कुछ हिस्सा में भी 4 लाइन्स में भी 2 लाइन्स में भी 6 लाइन्स दिए जाएंगे, और आपको क्या करना होगा, इधर यू विल हैव टू पैराफ्रेज इट और यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड इट्स पोएटिक डिवाइसेस। या तो आपको पोएटिक डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, या तो आपको वही से क्वेश्चन में होगा फाइंड द मेटाफर्स, फाइंड द सिमिलीज, फाइंड द पर्सोनिफिकेशन, और फाइंड द ट्रांसफर्ड एपिथेट, फाइंड द सिंबोलिज्म, फाइंड द इमेजेस इन द पोएम। वो चीजें आपको वही से क्वेश्चन में आ सकते हैं। लेकिन यूजुअली क्या आता है, या तो पैराफ्रेज करना है और यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस, और वो 2 चीजें हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो पोएट अपने लॉर्ड को अपना होप, अपना ट्रस्ट बुलाता है, उसको बोलता है कि साहिबो सत्यम दिख। नाउ लेट्स सी इन कश्मीरी ही सेज साहिबो सत्यम में चेनी, एंड इफ वी ट्रांसलेट इट, it means that I have my hope and my trust, or I have my trust in you. But how does the poet, English poet Malik Sahab, how does he write in such a beautiful metaphor? कितनी खूबसूरत मेटाफर्स पोएट इस्तेमाल कर रहा है, हमारे इंग्लिश में हमारे सामने ला रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला that he has a great contribution to English literature. और उन्होंने उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर को अपने इन मेटाफर्स से, अपने इस वे ऑफ राइटिंग से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेवल्स तक पहुंचाया है। अगर इफ आई वुड राइट इट, इफ आई वुड ट्रांसलेट, आई वुड ट्रांसलेट लाइक साहिबो सच्चे में चेनी, गॉड, लॉर्ड, अल्लाह, you are my, I have my hopes, I have my trust in you. But he writes, you are my hope and trust. So he addresses his God as his hope, as his trust. Lead me to the way of truth. Wat mein asli chhawtam. Show me the right path. Show me the right way. Sahi tariqa, sahi rasta. So that he doesn't stray from the right path. He doesn't indulge in wrong activities, wrong doings. So ये बोलता है उसको, Lord, lead me to the way of truth. मुझे सही रास्ता दिखाइए. How long shall I dwell in ignorance? मैं कब तक जहालत में रहूंगा? कोत काला रोज बेजा. Pour me the nectar of knowledge. These 2 lines बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 lines जो वर्सेस, पहली 2 वर्सेस है, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसी में आपको मेजर पोएटिक डिवाइसेस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, और ज्यादातर एग्जाम में ये तो आता ही आता है, बिकॉज इसमें पोएटिक डिवाइस है। एंड व्हाट इज दैट पोएटिक डिवाइस? आपने बेटा स्कूल्स में पढ़ा होगा, या किसी टीचर के पास ऑलरेडी पढ़ा भी होगा मेटाफर किसको बोलते हैं। लेकिन आपके सामने मैं थोड़ा सा मेटाफर के बारे में बताऊंगा। मेटाफर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एक बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर हम 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल अपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जिसके बेसिस पर हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, और ये डायरेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस मेटाफर रहा है शेक्सपियर का। वो बोलते हैं द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। स्टेज क्या होता है? स्टेज वो जगह होती है जहां पर हम परफॉर्म करते हैं, वहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दुनिया को स्टेज के साथ कंपेयर करता है शेक्सपियर। बोलता है कि यहां पर भी हम, इस दुनिया में भी हम परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ही आते हैं। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इज टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड विद गुड एक्टिविटीज, व्हाटएवर, हाउएवर। हमारे अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है टू परफॉर्म, बिकॉज इट्स अ टेस्ट।
तो इसलिए हम बोल सकते हैं तो इम्तिहान है, दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ पर हम जो करते हैं उसका हमें आगे जाके हिसाब भी देना है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से, अपने नैरेटिव से ले ले, तो दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। लेकिन उसके बगैर हम पोइट्स को अगर छोड़ दे, जो राइटर्स रहे हैं उनको छोड़ दे, कॉमन से मेटाफर्स आपके सामने मैं रखूं, मैं बोलूंगा टाइम इज मनी। वक्त पैसा है। वक्त अगर पैसा होता तो मैं यहां पर कोई किसी जगह जाता नहीं, ही वुड सेव दैट मनी, ही वुड सेव दैट टाइम। लेकिन अगर देखा जाए टाइम क्या है, टाइम तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये तो बनाया गया है, ये तो हाथ में नहीं आता है ना, ना तो देख सकते हो, ना तो सुन सकते हो, ना तो फील कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम जब मनी की बात आती है, पैसे, यह हमारे लिए एक मटेरियल है, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट है। वो एब्स्ट्रैक्ट है, ये कॉन्क्रीट एक मटेरियल नाउन है, हमारे हाथ में आता है, हम फील कर सकते हैं, हम होल्ड कर सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका एक वजन हो सकता है जो कि टाइम का नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूं टाइम इज मनी, तो मैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक मटेरियल नाउन के साथ क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो एक वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही ज्यादा रूड हूं, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं, मुझ में कोई सिंपैथी नहीं है, मैं काइंडनेस नहीं रखता हूं, मैं एम्पैथी नहीं रखता हूं, तो पीपल समटाइम्स, या मुझे ज्यादा फील नहीं होता है किसी चीज से, तो पीपल से दैट यू हैव हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल है तुम्हारा। पत्थर का दिल तो थोड़ी हो सकता है किसी का, वी हैव अ हार्ट ऑफ फ्लैश। लेकिन एक पर्टिकुलर, क्योंकि हार्डनेस के साथ मेरे दिल को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन कोई बंदा होता है, जेनरस होता है, काइंड होता है, लव अफेक्शनेट होता है, हम बोले हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर सोने का दिल होता तो उसको तो बेचारे को चोरी किया गया होता, वो तो मर गया होता। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सो जस्ट बिकॉज गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रेशियस मेटल और वैल्यूबल भी है, तो हम उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ गोल्ड। क्यों? हमें लगता है उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीशियस चीज के साथ कंपेयर किए जा रहे हैं। और इन द सेम यहां पर जब पोएट बोलता है लॉर्ड, ये जो यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, माय डियर, इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक पोएटिक डिवाइस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्फोनेसिस। एक्फोनेसिस, एक्फोनेसिस वो पोएटिक डिवाइस होती है बेटा जहां पर पोएट एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करता है, सो दैट ही वुड गिव मोर स्ट्रेस ऑन दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस करे, ज्यादा एम्फसाइज कर ले उसको, उस पोएटिक डिवाइस को बेटा एक्फोनेसिस बोलते हैं। तो पहले ही आपको लॉर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल किया गया, तो ये बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही एम्फेसिस के साथ पोएट अपने लॉर्ड को इम्प्लोर कर रहा है, बुला रहा है, एड्रेस कर रहा है, लॉर्ड, लॉर्ड साहिबो साक्षम में चाहिए। तो यहां पे यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, होप एंड ट्रस्ट। तो एक किसको बुला रहे हैं होप एंड ट्रस्ट? हिज लॉर्ड। होप एंड ट्रस्ट दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है ना। और यहां पर पोएट अपने लॉर्ड को होप एंड ट्रस्ट के नाम से एड्रेस कर रहा है, ना कि ये बोल रहा है दैट आई हैव माई होप एंड ट्रस्ट इन यू, रादर ही कॉल्स हिम हिज होप एंड ट्रस्ट। ये हम कभी कभी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिकेट मैच चल रहा होता है, कोई मैच चल रहा होता है, तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल 10 बॉलों में 15 रन करने, तो वहां पर 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक रेगुलर बैट्समैन है, एक बॉलर है, तो हम उसको बोलते हैं बैट्समैन को, अब तुम ही लास्ट आखिरी उम्मीद हो, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो। वो तो उम्मीद नहीं, हो तो इंसान है, उम्मीद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? तुम ही आखिरी उम्मीद हो, because we have hope in him, that's why we sometimes use metaphor there, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो। in the same way अल्लाह को ये अपनी उम्मीद, अपना भरोसा के नाम से एड्रेस कर रहा है, तो ही कंपेयर्स है यहां पर याद रखना, या अपने लॉर्ड को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, किसके साथ? होप एंड ट्रस्ट के साथ, बिकॉज वी हैव आवर होप्स, आवर ट्रस्ट, आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर लॉर्ड, फ्रॉम आवर ऑलमाइटी, फ्रॉम अल्लाह। हम अपने अल्लाह से वो उम्मीदें रखते
लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, मुझे सच्चाई का अच्छा रास्ता दिखाइए। वे ऑफ ट्रूथ इज अनदर मेटाफर, एक और मेटाफर है। क्या है? मेटाफर है वे ऑफ ट्रूथ। देखिए सच्चाई का रास्ता, रास्ता तो किसी जगह का हो सकता है, डेस्टिनेशन का हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सफाकदल जाना है तो मैं एक रास्ता ले लूंगा, एक कॉन्क्रीट, एक फिजिकल रास्ता होगा, रोड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ इज नो डेस्टिनेशन, ट्रुथ इज नो प्लेस। लेकिन हम कश्मीरी में बोलते हैं असल च वत है नहीं, सही रास्ता दिखाए। वो सही रास्ता क्या होता है? वो सही रास्ता इज ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, नोबल नेचर, हेल्पफुल नेचर, काइंडनेस। वो सारी चीजें जो आती है वो सच्चाई के रास्ते में आती हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि एक झूठा बंदा, एक धोखेबाज मुझ में नहीं हो सकता है, अदरवाइज ही कैन बी एनीथिंग बट ही कैन नॉट बी अ लायर, ही कैन नॉट बी अ बिट्रेयर। लेकिन यहां पर लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता तो है नहीं, लेकिन ये सच्चाई का रास्ता जो है, रास्ता ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ट्रूथफुलनेस है, इन सभी चीजों को रास्ते के साथ कंपेयर किया जा रहा। एंड देन ही सेज हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, कब तक मैं जहालत में रहूंगा, जहालत में रहूंगा। अगेन अ मेटाफर, जहालत में रहना, हम कहाँ रहेंगे? वी विल लिव इन अ हाउस, इन अ बिल्डिंग, इन अ रूम। हम कोई चीज किसी चीज में, किसी बॉक्से में या किसी बैग में रख सकते हैं, तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिजिकल प्लेस हो सकती है जहां पर एक इंसान रहेगा, या कोई चीज रखी जाएगी या रहेगी। लायंस लिव इन अ डेन, फॉर एग्जाम्पल एक डेन में रहते हैं, या जो वाइल्ड एनिमल्स है फॉरेस्ट्स में रहते हैं, तो एक फिजिकल जगह है। बट व्हेन इट कम्स टू इग्नोरेंस, जहालत, जहालत इज एक्चुअली नो प्लेस, कोई जगह नहीं है, एक स्टेट है। ये एक इट्स अ स्टेट, स्टेट ऑफ अ पर्सन। मैं कब तक जहालत में रहूं? एंड दिस इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ नॉलेज। मैं कब इस इल्म के बगैर, इल्म की कमी की हालत में रहूंगा? इन हाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल आई लैक नॉलेज? तो ये बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। नाउ देयर आर मेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड नेक्टर। व्हाट्स नेक्टर? नेक्टर हमें पता है ना, वो जो फ्लावर्स में जो एक लिक्विड सक करते हैं हनी बी, उससे हनी भी बनता है। अब देयर आर मेनी गुड और लीगल और हेल्दी liquids that could have been used, जैसे milk of knowledge, water of knowledge, but here says nectar. Why nectar? ये nectar ही क्यों? Why not some other? Because सबसे पहली चीज, ये nectar जो होता है it's on a flower. फ्लावर जो है वो खुशबू देता है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, पहले तो ये खुशबू देता है, दूसरी चीज ये एक बैरन लैंड को, या कोई भी जमीन हो, अगर किसी मैदान में जाओगे, हम उसको ग्राउंड बुलाएंगे, अगर उस मैदान को हम ग्रास लगाएंगे, साइड्स में फ्लावर्स लगाएंगे, बीच में फ्लावर्स लगाएंगे, तो हम उसको गार्डन बुलाते हैं। हम अपने आंगन को आंगन ही बुलाते हैं, लेकिन जैसे हम उसमें एक जगह, एक साइड से फूल लगाते हैं, ग्रास उगाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं बाग, गार्डन एरिया। It becomes a garden. In the same way, आप नेक्टर ऑफ नॉलेज क्यों बोल रहा है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये फूलों पे होता है और ये खुशबू देता है। फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली चीज वो फ्रेग्रेंस देता है, और दूसरी चीज ये ये एडोन करता है। क्या करता है? इट एडोन्स, इट फेस्टून्स अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह को एक खूबसूरती से नवाजता है। Now when he says nectar of knowledge, देखिए we know
Iblis had knowledge. But nectar is very important. A person with knowledge, but at the same time with humility. Nadamat. That I would serve people. I would have pride that I possess knowledge, but at the same time I'm humble. ऐसा ना हो कि वो चीज मुझे एरोगेंट बनाए, ऐसा ना हो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा एक किस्म से तकब्बुर बनाए, मुझ में तकब्बुर लाए. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ड्वेल, यहाँ पर नेक्टर ऑफ नॉलेज भी जो है, इट इज ऑल्सो अ मेटाफर. ये भी एक मेटाफर ही है. क्योंकि नॉलेज अगर देखा जाए, नॉलेज अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन नेक्टर जो है लिक्विड है. जस्ट बिकॉज नॉलेज जो होती है इंसान में एक satisfaction लाती है. और when we offer this knowledge to someone, when we serve the nation with this knowledge, we feel contentment, we feel composure. तो वो चीज जरूरी होती है. It should be helpful to people. ये लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ना कि किसी को इंफीरियर करे. इसीलिए मैंने बोला नेक्टर ऑफ नॉलेज इसीलिए इस्तेमाल किया गया, सो दैट यू मस्ट possess a lot of knowledge, but at the same time you must be humble, thankful to Allah for blessing you. तो वो चीजें अल्लाह से ये बोल रहा है. नेक्टर ऑफ नॉलेज अगेन ए मेटाफर. ठीक है ना, ये भी एक मेटाफर है. ठीक है. Then lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains. ये ills and pains भी जो है मेटाफर ही है. He is actually not talking about physical illness or pains. No. एक इंसान में lack of gratitude होता है. क्या होता है? No, he is not thankful. He is not thankful for anything that Allah has blessed him with. He often, sometimes, when someone started, if he used to earn some amount and he desired, he prayed that may Allah fulfill all those necessities that I owe towards my family, that I have. May Allah make me worthy of fulfilling my obligations towards my family. Lekin once he is fulfilling, he then starts desiring for some other things, lavish things, luxurious things, and he never feels content. And that's actually in every one of us. हम सब में. We see our friend buying a car, we also want to buy a car. Or we see this person doing something, we also want to do that thing. But we are never satisfied for something that Allah has blessed us already with. तो ये ills and pains हमें बोल रहा है कि अल्लाह मुझ में जो ये lack of gratitude है, मतलब जो मैं शुक्रगुजारी नहीं करता हूँ इस चीज से, ये ills and pains cure me of, कि मैं ऐसा बंदा बन जाऊं that I say Alhamdulillah, I thank you, I become grateful, thankful for everything that you bless me with, that you offer me, that you have for me. And then he says, be kind each moment to me, let me never feel in want. अगर देखा जाए ये सारा का सारा ये जो लाइन ही है, ये अगेन एक एक्सटेंडेड एक हिडन मेटाफर है. Let me never feel in want. Then be kind each moment to me. He says कि मैं हमेशा जो भी मांगू मुझे सब कुछ देना. He's not talking about the physical things, and he is even not asking for anything. He is saying कि be kind each moment to me. मुझ पे हमेशा kind रहना. Let me never feel, or it has been written somewhere, fall in want. Some books fall in want भी लिखा है. And let's not go in the terminology, लेकिन ये feel और fall in want का मतलब क्या होता है? That I become so thankful, so grateful that I never feel lacking of anything. मुझे किसी चीज की कमी महसूस ना हो. मैं हमेशा हर हालत में आपका शुक्रगुजार ही बनूं. जिस हालत में भी आप जितना भी मुझे प्रोवाइड करो, मुझे कभी भी I should never fall in the trap of rat race that this friend of mine, this person, this relative of mine has this thing. Allah doesn't bless me with this.
Allah does this thing to me. Allah, no, I should say thank you, Allah Almighty. I may, Alhamdulillah, whatever you are blessing me with, I'm happy, I'm thankful. तो ये ऐसा नेचर चाहता है कि let me never feel and want, मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, या ना मुझे कभी किसी चीज की डिजायर महसूस हो कि मुझे ये चाहिए. दुनिया की चीजें, दुनिया की चकाचौंध, this no, these luxuries of this world should not distract me, should not stray me from my path, from your path. So that's why, again, it's an extended metaphor, a hidden metaphor है यहाँ पे. Save me from sloth, infirmity and doubt. मुझे बचाइए कि मैं lazy ना बनूं, मैं infirm ना बनूं, मैं doubtful ना बनूं. About what? About your blessings, about your existence, about my faith in you. No, बोल रहे हैं कि सरचार्ज, बल्कि आप मेरे दिल में क्या डालिए, एक पैशन डालिए, जेस्ट डालिए, होप डालिए. बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम वल्नरेबल. एक इंसान वल्नरेबल होता है. दैट्स अगेन वन ऑफ द फैक्ट्स. इसीलिए हम अल्लाह से ही शुक्रगुजारी का नेचर भी मांगते हैं. बिकॉज वी आर वल्नरेबल. हम किसी भी चीज को देखकर टेम्प्ट तो हो ही जाते हैं. दिस इज इन ह्यूमंस. लेकिन अब अगर अल्लाह, इफ अल्लाह ब्लेसेस अस with that nature, with that trait, with that characteristic, then we certainly are blessed. And that's why he's asking Allah to surcharge his heart with these qualities, positive qualities. So बेटा यहां पर इस पहले स्टेंजा में अगर देखा जाए तो आपने क्या देखा, यू सॉ कि यहां पर पहले ही 2 लाइंस में आपको 4 मेटाफर्स मिल रहे हैं. उसके बाद क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स. इल्स एंड पेन्स अगेन कैन बी अ मेटाफर फॉर अनग्रेटफुलनेस, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है ना, डिजायर्स. एंड देन यहां पर ये हिडन मेटाफर है. लेकिन ऊपर के 4 जो है बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहां पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हमने लिखा है जो पैराफ्रेजिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैराफ्रेजिंग आ सकती है. द पोएट कॉल्स गॉड हिज होप एंड ट्रस्ट. ही इम्प्लोर्स गॉड टू लीड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ. The poet has so far been living a life of ignorance. He prays to God to bless him with the nectar of knowledge. The poet is crying. He appeals to his God to listen to his prayers. He prays to him to cure him of ills and pains. As I told you, lack of gratitude. He wants God to be kind to him each moment, so he does not feel any want of anything. He also prays to God to save him from laziness, weakness. He does not want to live a life of doubts. He wants a God, he wants his Lord to fill his heart with passion, with enthusiasm and with hope. तो बेटा इसके बाद पोएट क्या बोलता है, let me not ever chant the sleep inducing tales, let me sing the songs that infuse life into the dead, let me sing of that which inspires people with love. चलिए आप पहले ये 3 लाइन्स का पढ़ते हैं. बोले कि स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, मैं कभी चैंट ना करूं, मैं कभी ना गाऊं. कौन से? स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स. ये स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स बेटा मेटाफर है यहां पर पहले ही. अब यहां से फिर से मेटाफर पढ़ना पड़ेगा हमें. ये स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स का मतलब क्या है? इट इज नॉट अ लालाबाई, ये लोरी नहीं है. इट्स एक्चुअली इट हैज अ हिडन मीनिंग अगेन. मैं वो चीजें ना गाऊं जिससे मेरा जमीर और मेरा दीन, मेरा ईमान जो है वो न सो जाए. यू विल बी फिजिकली अवेक, विल बी फिजिकली अवेक. लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स. हम वो चीजें ना गाए, वो चीजें ना पढ़े, वो चीजें ना करे, वो चीजें ना बोले जिससे इंसान का ज़मीर जो है, ऐसे बोलते हैं अल्लाह ने फरमाया है पहले ही पहली कुरान में सूरह बकरा में कि इंसान जब बहुत ज्यादा गलत काम करता है, when he sins a lot,
Then Allah says, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim." What does actually it mean? It means that पहले हम बायोलॉजिकली भी अगर देखा जाए, बायोलॉजी के हिसाब से द फर्स्ट जो ह्यूमन फिटस में बनता है दैट्स नर्वस सिस्टम. और जब कुरान पढ़ते हैं तो बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं कि पहले मैं आपको पावर टू लिसन देता हूँ, देन पावर टू सी. कलब तो दूसरा, मतलब जो आज भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि दूसरा फिर आपको जो कार्डियल सिस्टम है वो बनता है एक इंसान को. लेकिन यहां पर अल्लाह बोलते हैं खत्मुल्लाह अला कुलूबिहिम, पहले मैं आपका कलब खत्म करता हूं. इट्स नॉट डेथ, मतलब देयर इज अ स्टैम्प ऑन द पर्सन's heart that now he cannot judge between right and wrong. वाला खत्मुल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समहिम, अब ये देखेगा बट ये देखेगा ही नहीं. वाला अबसारिहिम, ये सुनेगा मगर ये सुनेगा नहीं कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. So again, when a person is involved, indulged in wrong activities, he says कि मैं वो चीजें ना करूं, वो चीजें ना गाऊं जिससे मेरा जमीर, स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, जिससे मेरा जमीर जो है वो सो जाएगा. That's what he's saying. Let me not ever chant the sleep inducing tales. Let me sing of that which inspires, which infuse life into the dead. जो मरे हुए को जिंदा कर ले. ऐसा हो नहीं सकता कि मरा हुआ जिंदा हो जाए. ये तो पहले अल्लाह में ही वो उतनी कुदरत है. He is only that omnipotent that he can resurrect any dead, or this power was given to Hazrat Isa alayhi salatu wasalam by Allah only. पर यहां पर जो है ये अगेन एक मेटाफर ही है. पहले life into the dead means, and I remember Yasmin Mujahid's one book, namely Reclaim Your Heart, in which she says कि this world is a sea. जब इंसान और आपकी जिंदगी जो है एक शिप है, और जब इस शिप में इसका समंदर का पानी जाता है तो ये डूब जाओगे. लेकिन वहां पर वो एक होप भी रेज करती है, बोलती है कि इस समंदर का एक डेड एंड भी है जहां से एक इंसान वापस आ सकता. तो ये जो मैंने ऊपर पहले बोला कि पहले जमीर पे एक स्टैम्प पड़ती है, लेकिन इफ समवेयर ही फील्स गिल्ट इन हिज हार्ट, ही श्योरली ये वापस आ सकता है, वापस आ सकता है. दैट्स व्हाई मैं वो चीजें गाऊं, वो चीजें पढ़ूं जिससे क्या होगा, विच इंस्पायर, विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, जो मुर्दों में भी जिंदगी लाएगा. मतलब जिनका ईमान जो है, जिनको या जो those who are not able to differentiate between right and wrong, उनमें क्या हो जाए, वो भी वापस अपनी कॉन्शियंस को लाए, अपना जमीर जिंदा करे. सो यहां पर ये लाइफ इनटू द डेड जो है, विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, इज एक्चुअली अ पर्सन कमिंग बैक, रिसरेक्टिंग फ्रॉम अ डीप स्लीप ऑफ इग्नोरेंस to enlightenment of knowledge, of education, of truth. Here, one more thing is there, antithesis. Now, what is antithesis? Antithesis is that poetic device. ये वो poetic device होती है where two opposite ideas are juxtaposed in a parallel form. देखिए, usually students are confused between between antithesis and oxymoron, and some are even confused with paradox, but usually oxymoron और antithesis के बीच में. देखिए बेटा, oxymoron में दो words होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं. वन यूजुअली एक्ट्स एज एडजेक्टिव टू इट, लेकिन वो अपोजिट होते हैं. लेकिन यहां पर मैंने बोला जक्सटापोज्ड इन पैरेलल फॉर्म, वो अलग अलग होंगे. जैसे कि यहां पर है लाइफ, यहां पर क्या है लाइफ, एक जगह पर क्या है लाइफ, और यहां पर क्या है डेड. तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है टू ईच अदर. तो यहां पर इस लाइन में आपको एंटीथीसिस मिल जाता है.
And let me sing of that which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. बोले कि मैं वो चीजें गाऊं कि वो जो लोगों को इंस्पायर करे कि वो एक दूसरे से के साथ मोहब्बत से रहे, हसद ना रखे, बुगुज ना रखे, बिटरनेस ना रखे, कोई कड़वाहट ना रखे, बस मोहब्बत रखे, शफकत रखे, एक ईमानदारी रखे, काइंडनेस, रहमदिली रखे, एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखे, एक दूसरे की मदद करे. Let me sing of that means he should motivate people with Allah's Allah's commands and Allah's traits. Because Allah's traits are that He is kind. He's kind to us. He loves us. Some of the very important traits, characteristics. So he says that let us also love this mankind जिसको अल्लाह ने बनाया कि हम भी उस दुनिया में वही शफकत, वही मोहब्बत, वही हमदर्दी फैल एक दूसरे के साथ रखे, ना कि we will vanish all bitterness and hatred that we keep in our heart, that we hold in our hearts, the grudge that we hold in our hearts for others, jealousies. No, he says, let us encourage each other. Let us love each other. Let us be happy for each other. And यहाँ पर एक बेटा एक और poetic device है, that's anaphora. अब ये anaphora कौन सी poetic device होती है बेटा? Anaphora is that poetic device जहां पर एक से ज्यादा consecutive lines, more than one consecutive is very important. More than one consecutive line start with the same word. वो same word से start होता है. अगर आप देखेंगे यहां पर 3 words या 3 lines जो है let me से start हुए, तो ये कौन सा poetic device है बेटा? This is anaphora. ठीक है? And cause all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Now here the poet talks about purpose of life. जिंदगी का मकसद, जिंदगी के मकसद के बारे में बात की जा रही है. What is the purpose of life? He brought me to bloom. यहाँ पर इस दुनिया में अल्लाह ने मुझे एक फूल के, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है खुद को एक फूल के साथ. You brought me to bloom because bloom कौन करता है? Bloom flower करता है. अब ये फ्लावर के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है? Because Allah wanted to make this place, this world, a beautiful place, a beautiful abode for everyone. और जैसे मैंने अभी बोला आपको कि फूल जब किसी मैदान में उगाते हैं तो उस मैदान का नाम उस मैदान से एक बाग की तरह हम तब्दील करते हैं. We change the name from a ground, from a field to a garden. So here again he says, you brought me to bloom. आपने मुझे इस दुनिया में खिलने के लिए, फूल की तरह खिलने के लिए, और वो भी with the earliest vernal breeze. मतलब पहले से ही मेरा मकसद वही होना चाहिए. I should not be waiting for a particular time कि मैं एक mature हो जाऊंगा, 40 साल का, 50 साल का हो जाऊंगा, and then I'll start doing good things because I'll be close to my death. No, ऐसा नहीं. With the earliest vernal breeze means a person should understand his purpose right from the beginning. मेरा purpose है that I'm a flower and I should make this place a beautiful abode to live in. And that's why he says, you brought me to bloom. आपने मुझे इस दुनिया में लाया. क्या लाया? इस दुनिया में लाया with the earliest vernal breeze. यहाँ पर ये एक और मेटाफर है. यहाँ पर मैं लिखूंगा. The poet compares himself to a flower. And then he says, इधर एक और चीज है, पोएटिक डिवाइस है, वो है एलिट्रेशन. क्या है? आई होप कि आपको एलिट्रेशन पता होगी. एलिट्रेशन होता है वो वाला पोएटिक डिवाइस जहां पर जिस वर्ड्स में एक से ज्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स या एक से ज्यादा वर्ड्स या सेलेबल होता है डिवीजन ऑफ ए वर्ड, वो बीच में भी आ सकता है, लेकिन वहां से वो सेलेबल स्टार्ट होता है.
एक से ज्यादा वर्ड्स या सिलेबल्स एक ही कंसोनेंट साउंड, लेटर से नहीं, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखोगे, यू ब्रॉट बी है, मी टू ब्लूम अगेन बी है, विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, 3 बार एक ही वर्ड्स में 3 वर्ड्स ब साउंड से, बी साउंड से रिपीट स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए इस लाइन में आपको एलिट्रेशन भी मिलता है। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, लेट not the burning heat of summer wither me gray। ये burning heat of summer मुझे क्या ना करे, मेरा पर्पस खत्म ना करे। देखिए चले, ये अगेन अगर देखा जाए, अब यहां पर बोलने की तो जरूरत नहीं है कि ये एक मेटाफर है, ठीक है ना। आई डोंट नीड टू से दिस थिंग बिकॉज इट इज अ मेटाफर। यहां पर आपको ये समझ तो आया ही होगा, क्योंकि विदर कौन चीज होती है, व्हाट विदर्स, इट्स अ फ्लावर दैट विदर्स। तो यहां पर अगेन दिस लाइन इज अगेन अ मेटाफर, क्योंकि यहां पर ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, ही कंपेयर्स फ्लावर्स, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ मींस ह्यूमन बीइंग्स विद द फ्लावर्स। किनके साथ, फ्लावर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो ये भी एक बेटा मेटाफर ही है, ठीक है। ओके, यहां पर पैराफ्रेजिंग, जैसे मैंने आपको बोला था, द पोएट वांट्स टू रिमेन एक्टिव ऑल थ्रू हिज लाइफ, ही डज नॉट वांट टू सिंग सच टेल्स व्हिच कैन मेक वन स्लीपी एंड लेजी। देखिए, मेटाफोरिकल लैंग्वेज आपको पैराफ्रेजिंग में डिस्कस नहीं करनी होती, इसीलिए मैं नॉर्मल लैंग्वेज ही वापस आपको दिखा रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग मेटाफोरिकली, जो हम समझते हैं। हमें पैराफ्रेजिंग में वही वाला ट्रांसलेशन लिखना होता है जिस कंटेक्स्ट से डिनोटेटिव, इसको बोलते हैं डिनोटेटिव सेंस, जहां पर अगर ब्लू है तो ब्लू का मतलब ब्लू ही है। लेकिन कॉनोटेटिव सेंस होता है कि अगर मैंने कभी ब्लू बोला तो मैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ब्लू गॉड, द गॉड ऑफ हाईएस्ट टीचर, तो वहां पर ब्लू का मतलब होता है ग्रेट, ब्लू ब्लड, खानदानी। तो लेकिन जब हम पोएम को लिखते हैं ना, पैराफ्रेजिंग करते हैं, पहली चीज आपको याद रखनी है, शुड बी डन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहली चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करनी है। और दूसरी चीज ये भी है, या चाहे समरी क्यों ना लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख लो। दूसरी चीज, जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो उसके डिनोटेटिव सेंस, मतलब डिक्शनरी सेंस के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए आप देखोगे यहां पर मैंने भी लिखा, जो उसको स्लीपी ना बनाए, लेजी ना बनाए। He wants to sing such songs which can infuse life into the dead. He wants to sing those songs which can inspire people to love each other. He wants people to sing those songs which will cause all hatred and bitterness to vanish, to end. The poet wants that it was God who filled his heart with the freshness of earliest spring breezes. Now he does not want that any unpleasant or painful thing should lead to withering of enthusiasm in his heart. Like for example, ये let not the burning heat of summer क्या मतलब होता है, पहले ये भी समझ लो। ये भी एक मेटाफर, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, ये क्या होता है, इस दुनिया में बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है, एंड दैट्स व्हाट बर्निंग हीट ऑफ समर इज, जिसकी तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, वी आर वल्नरेबल, हम ह्यूमंस हैं, वी आर वल्नरेबल, हम टेम्प्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि हमें ये दुनिया की जो चकाचौंध है, दिस शुड नॉट टेक आवर पर्पस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेंजा। Like dew, how long shall I wait for the first flash of sun? मैं कब तक वेट करूं इसको। बेटा ये जो होता है ना, ये रेटोरिकल क्वेश्चन होता है। क्या होता है? अब ये रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, पहले हम ये तो समझ ले। रेटोरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पोएट्री में, इवन आर्टिकल्स में। इंशाल्लाह मैं आर्टिकल राइटिंग पे एक बहुत अच्छा लेक्चर दे दूंगा मैं, जिसपे मैं आपको आपके साथ एक लेक्चर भी डिस्कस करके आपको बोलूंगा कि किस तरीके से आप अपने आर्टिकल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जहां पर पोएट वो क्वेश्चन पूछता है इसलिए ताकि वो अटेंशन ग्रास्प कर ले अपने रीडर का, ठीक है। जवाब नहीं मांग रहा होता, ही इज नॉट सीकिंग फॉर एनी आंसर और समथिंग, ही इज जस्ट आस्किंग सो दैट ही वुड कैच अवर अटेंशन, ठीक है ना। जैसे टीचर्स हम बोलते हैं, डू यू नो व्हाट दिस इज, ओके आई एम गोइंग टू टेल यू। तो इससे क्या होता है, हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो होता है हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ही फोकसेस मोर, ठीक है। तो ये पूरा लाइक ड्यू, एक शबनम की तरह,
बेटा ये सिमिली है। अब सिमिली और मेटाफर में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। जो मेटाफर था वही सिमिली है। कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, अपोजिट थिंग्स। लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहां पर या तो वर्ड होता है सिमिली में लाइक यूज, या तो एज यूज। ये दो वर्ड्स में से एक वर्ड यूज हो सकता, इसीलिए बोल रहे लाइक ड्यू, ड्यू की तरह। तो यहां पर पोएट जो है खुद को ड्यू के साथ कंपेयर कर रहा। हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn। मैं कब तक वेट करूं कि मुझ पे सनलाइट पड़े। अगर आप इसका डीप सेंस देखें कि हम क्यों वेट करें कि हमारे साथ, अब अलग अलग नैरेटिव्स हो सकते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए उसके बाद हमें अल्लाह याद आता है ना। यूजुअली आई हैड रेड समवेयर दैट द ग्रेटेस्ट टेस्ट्स आर नॉट द problems, calamities sent by Allah. No, the tests are blessings. Because the greatest test, he says that the greatest test is the remembrance of Allah, remembrance of your Lord, of your God. तो हम अपने अच्छे टाइम पे तो अल्लाह को याद ही नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे पास हमारे ऊपर कोई कैलेमिटी पड़ती है तो हमें अल्लाह याद आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदाया हूँ। तो टेस्ट इज नॉट एक्चुअली, टेस्ट इज एक्चुअली रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। अब आप खुद सोचे हमें अल्लाह कब याद आता है। तो बोल रहे कि ये एक नैरेटिव हो सकता है। दूसरा नैरेटिव ये हो सकता है कि मैं क्यों वेट करूं एक एज पर। नो, जैसे ही मुझ में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए, मैं खुद को ये ना बोलूं कि मैं बच्चा हूं, छोटा हूं। नो, आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन माई पर्पस। मैं क्यों वेट करूं? बोल रहे हैं कि in form I am a man, in substance far from humanity। शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर। In form I am a man, in substance far from humanity। अगेन एंटीथीसिस है, फिर से ये एंटीथीसिस है, ठीक है ना। ये फिर से एंटीथीसिस है। बोल रहे कि मैं कब तक किससे? मैं तो इंसान हूं, शक्ल से तो इंसान हूं। आई हैव एन अपराइट बॉडी, आई हैव गॉट 2 आर्म्स, आई हैव गॉट नोज, आई हैव गॉट 2 आईज। सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमंस के, लेकिन इंसानियत के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इंसानियत के वो फीचर्स नहीं है। जैसे कि अल्लाह ने हमें बोला था सिंपैथी रखना, काइंडनेस रखना, दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना, खूबसूरत जगह बनाना। सो यही इसीलिए बोला इन फॉर्म आई एम अ मैन, शक्ल से तो मैं इंसान हूं। इन सबस्टेंस मतलब इन एक्शन, बाय वर्च्यूज मैं इंसान वाली क्वालिटीज नहीं रखता हूं। एक और पोएटिक डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम बिल्कुल क्या करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आई एम आदिल, आई टीच इंग्लिश, तो एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला एक एग्रीमेंट फॉलो हो गया। लेकिन क्या होता है ना, जब वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, एंड दिस इज ओनली डन इन ग्रामर, इन पोएट्री। ग्रामर में एक जगह होता है दैट्स कॉल्ड एडवर्ब इन्वर्जन, एंड इंशाल्लाह रहमान किसी लेक्चर में उसमें 5-10 मिनट लगेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। अगर मैंने नेवर पहले बोला तो फिर मुझे नहीं बोलना है नेवर आई हैव हर्ड, फिर मुझे बोलना है नेवर हैव आई हर्ड ऑफ दिस, एंड इट डजंट बिकम अ क्वेश्चन, इट्स अ स्टेटमेंट। तो इन्वर्जन उसको बोलते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही बिल्कुल मैंने चेंज कर लिया। अब यहां पर बोल रहे हैं इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सबस्टेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, फॉरसेकन बाय मैन एम आई, सो दे कॉल मी महजूर। अगेन इन्वर्जन, दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया है। Forsaken by man am I, so they call me महजूर। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था, महजूर का मतलब होता है परसुन, abandoned। तो यहां पर बोल रहे हैं दुनिया ने मुझे तो छोड़ दिया है। देख लीजिए, I am forsaken by man, this is actual structure, लेकिन लिखा कैसे, forsaken by man am I, that's why it's an inversion। So they call me महजूर, इसीलिए वो मुझे महजूर बुलाते हैं। People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord। लोग मुझे छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप नहीं छोड़ना, पर आप नहीं छोड़ना। Okay, sorry, I forgot this thing. Subject me not to trials, shame not my human form। बोले कि सब, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे क्यों याद आया, बोल रहे हैं कि अल्लाह
मुझे ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना, वरना मेरी जो ये ह्यूमन फॉर्म है ये शेम्ड हो जाएगी आपके सामने, एम्बैरस हो जाएगी आपके सामने। मैंने अब ये बोला, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, ही सेज की सब्जेक्ट में यहाँ पर बोल रहा है पीपल में, डेजर्ट में, लोग मुझे छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नहीं छोड़ना। लेकिन ऊपर बोल रहा है कि शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म। आपको लगेगा कि ये दुनिया के सामने शेम नहीं होना चाहिए, इट डजंट मैटर टू हिम, और इट शुड नॉट मैटर। द थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो बहुत ही गलत लगता है मुझे, विच आई एम नॉट एबल टू डू इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, बट आई एम डूइंग इट, बट माई फादर नोज, माई मदर नोज, they won't tell me चलो आज इकट्ठे करेंगे ये सारे, मे बी माई फादर ऑल्सो डज दिस थिंग। किसी के घर में कोई सिगरेट पीता है, उसका बेटा भी सिगरेट पीता है, अब फादर को पता है कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है, अब वो अपने बेटे को तो नहीं बोलेगा ना चलो आज इकट्ठे पियेंगे, वो तो ही विल बी ashamed ना, his son, and that's how we are disciples। हम बोलते हैं अल्लाह मैं अपने गुनाह अपनी गलतियां मान रहा हूँ, लेकिन जलील नहीं, अब दुनिया के, अब मुझे इसको टेबल पे मत लाओ, shame not my human form because I won't be able to face you। That's why अगर ये जो टर्म है ना यहाँ पर, इससे पैराडॉक्स, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस वाली स्टेटमेंट को, जब बोल रहा है कि पीपल में, डेजर्ट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, इट डजंट मैटर टू मी, बट यू डोंट अबंडन मी, आप मुझे नहीं छोड़ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म। तो यहाँ पर ये समझना है, ही स्टिल कंसर्न, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, ही स्टिल कंसर्न अबाउट हिज गॉड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। द poet here compares himself with dew, drops of dew have to keep lying in the grass till the, क्योंकि वो तब तक विजिबल नहीं होंगे ना, जब तक उस पे नहीं, बोल रहे नहीं मेरी एग्जिस्टेंस वैसी ना रहे कि जब तक मुझ पे वो सनलाइट ना पड़े तब तक मैं छुपूं ना, माय एग्जिस्टेंस शुड बी लाइक टू सर्व माय पर्पस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड ही सेज and give them the power to rise up। Similarly, the poet wants God to fill him with the power to rise। He says that he has been lying like dew so far, now he wants to awaken like flower at the first stroke of dawn। It's only God who can give him the knowledge and wisdom to wake up। He says that so far he has been a man in form only, the real substance of man is humanity which has been far away from him। The poet prays to God not to put him to trials, he does not want God to shame his human form, he wants God to fill humanity in his human form, and only then he can become a man in the real sense। The poet feels himself all alone because he has been forsaken by others, that is why they call him Mahjur, which means the forsaken one। The poet doesn't care if the people have deserted him, but he does not want God to abandon him। Okay, further what we will discuss in this poem, we'll be discussing some questions। These are the questions जो आपको textual questions आ सकते हैं, लेकिन frankly honest I don't think that there will be any textual question in the examinations जो आपको एग्जाम में आएंगे। पोएट्री से questions नहीं आते हैं, पोएट्री से स्टेंजा आएगा, उसमें से आपको पोएटिक डिवाइसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी या तो उसका पैराफ्रेज करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। विच वे कौन सा रास्ता जो है पोएट इम्प्लोर करने की कोशिश कर रहा है, मांग रहा है अल्लाह से, पाथ ऑफ ट्रूथ, द वे ऑफ ट्रूथ, जो वहां पर लिखा था, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। दूसरी चीज, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स वो प्रे कर रहा है, नेक्टर ऑफ नॉलेज, वे ऑफ ट्रूथ, एंड cure him of ills and pains, protection from his wants and desires, freedom from laziness, weakness। He wants his heart to be surcharged with passion, zest, hope। He wants to sing the songs which will inspire people, and he wants exemption from trials। He doesn't, again you can write more, he does not want God to shame his human form, he does not want his God, the most important, he doesn't want God to abandon him, to desert him, to forsake him like others have। And then this is what is it that the poet wants to sing. The poet wants to sing those songs which infuse life into the dead, which inspire people to love each other, which will cause all hatred and bitterness to vanish once and for all।
and subject me not to trials, shame not my human form, means that he's ignorant about humanity. He's a human being in form only. So in these lines, the poet prays to God to exempt him from the trials, because he fears that he might not be able to face the trials, and his ignorance from humanity will get him exposed. So this is the question. This is the answer that you should write in the examinations. And then some metaphors, which I have discussed. Hope and trust, way of truth, dwell in ignorance, nectar of knowledge, brought me to bloom, that's flowers, wither me gray again, burning heat of sun, you can write, huh? Awaken me with the flowers. So these are some of the things which the poet has discussed. You can scan the QR to join the Telegram channel for free notes, inshallah Rahman. I'll be coming with another lecture in our next in our next video lecture, about the series, inshallah Rahman. Till then, may Allah bless you. Keep learning more and keep subscribing to our channel, and will inshallah Rahman be preparing you for your final examinations within the stipulated time that we have assured you. Thank you very much.